Meanwhile, prominent YSRCP leader Chevi Reddy Bhaskar Reddy has been arrested by the Special Investigation Team at Bengaluru International Airport while allegedly attempting to flee the country. Chevi Reddy, listed as accused number 38 in the high-profile Andhra Pradesh liquor scam during YS Jagan Mohan Reddy's tenure, was taken into custody along with his Benami associate Venkatesh Naidu. The SIT had been tracking Chevi Reddy in a dramatic twist, apprehended both men just moments before they were to board on a flight to Sri Lanka. According to SIT's probe, large sums of unaccounted cash generated through illegal liquor operations were funneled by Chevi Reddy and the YSRCP into the 2024 election campaign. The trail surfaced after the Election Commission seized Rs 8 crores in Prakasham district just before the money was to be delivered to the YSRCP candidate, eventually leading investigators to Chevi Reddy's role in the racket. Chevi Reddy's arrest marks a major breakthrough in ongoing probe that has rattled Andhra Pradesh's political circles. He will be produced before the ACB court in Vijayawada today, where the SIT is expected to seek his custody for further interrogation to expose the deeper financial and political links involved. In fact, we are joined in by Noor Mohammed. Noor, how significant is this arrest? And at the same time, the person in question, the YSRCP leader Chevi Reddy, his name has come up in many cases where the issue about money for funding of YSRCP was concerned. How much will this in fact be used by the TDP when it comes to going ahead and sanctioning YSRCP over this particular 8 crore money trail? देखिए, रात देर जाने के बाद चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी आंध्र प्रदेश से वो निकल चुके थे। कोलंबो जाना चाहते थे। वो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो ट्रैवल करने के लिए वहां पहुंच चुके थे। जैसा ही उनको इमिग्रेशन के अधिकारियों ने जब उनका पासपोर्ट चेक किया है, जब वो पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया था, जिसको देखकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको कस्टडी में लेकर आंध्र प्रदेश पुलिस को हैंड ओवर किया है। कल रात देर जाने के बाद बेंगलुरु से मंगलगिरी आंध्र प्रदेश राजधानी के लिए चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी को लेकर निकला गया है। देखिए, जब YSRCP की सरकार थी, जब लिकर स्कैम के अंदर 38 में नंबर था इनका, जो अक्यूज बनाया गया था, इनसे बार बार कई मर्तबा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इनको एक नोटिस भी दे रही थी कि आप आइए इन्वेस्टिगेशन के लिए सपोर्ट करिए, मगर चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी किसी तरह से वो बचते बचाते फिर रहे थे। मगर अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश पुलिस यही कर रही थी कि इन इन्वेस्टिगेशन केस के बचने के लिए ये विदेश जाना चाहते थे, जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। आज शाम तक मंगलगिरी पहुंच जाएंगे, क्योंकि बेंगलुरु से मंगलगिरी काफी दूर का रास्ता है और ये बाय रोड जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोपहर शाम तक पहुंचने की आशंका बताई जा रही है। और मंगलगिरी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने भास्कर रेड्डी के जब सवालात की बोझार उतारी जा रही है, जैसा उस दौर में कैसे लिखकर स्कैम हुआ था, कितने करोड़ रुपए किसके जरिए से एक दूसरे के हाथ बदले गए थे, तमाम सवालात की बोझार अब चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी के सामने रखी जाएगी। फिलहाल TDP ने देखिए जो गलत किया है, जिस तरह का स्कैम हुआ है, वो पूरे का पूरा पर्दाफाश होगा, TDP नेताओं का कहना है। मगर फिलहाल चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी पूरी तरह आंध्र प्रदेश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के टीम के अंडर हैं और फिलहाल उनको मंगलगिरी ले जा रहा है। देखिए, चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी जब मुंह खोलेंगे तो सब का सब बहुत सारे चीजें खुलकर सामने आएंगी। देखिए, अभी तक कई तरह की अरेस्टें हुई हैं। इसके अंदर एक चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी थे जो बचते बचाते फिर रहे थे, आखिरकार उनकी भी अब गिरफ्तारी हुई है। अब उनका मुंह खुलने के बाद कितने लोग इसके अंदर और अक्यूज बनाए जाएंगे, ये फिलहाल देखना बाकी है। Also, Noor, since you brought out this particular aspect about how important the person's role is in this, though he's accused number 38 in this, but YSRCP is going to face a lot of investigation, isn't it? Especially over this allegation that money was laundered from liquor sales into election campaigning. देखिए, बार बार आरोप यही लग रहा था कि जिस तरह से लिकर स्कैम के अंदर जो कुछ भी पैसा लिया गया था या इसका जो यूटिलाइज किया गया था ये इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, बहुत सारे सवालात बार बार उठते आ रहे थे। मगर इससे पहले कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, उन्होंने जेल भी गया है, इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के कन्वेंशन भी उन्होंने दिया था। मगर चेवी रेड्डी जो भास्कर रेड्डी थे, जो मेन किरदार है, जो मेयर मोहरा इनको बताया जा रहा था, उस वक्त भी इस तरह के सवालात उठ रहे थे। अब चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी से पूछताछ करने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम उनको बार बार नोटिस दे रही थी, वो किसी भी तरह से छुपते बचते फिर रहे थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि पुलिस मुझ पर सख्ती बरत रही है, पुलिस जो कहेंगी उसी तरह के डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, उस पर सिग्नेचर करने के लिए भी मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। मगर ये बार बार इनका इल्जाम था।
मगर अब ये पूरी तरह पुलिस की गिरफ्त में है। अब ये शाम तक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा कि पुलिस क्या कहती है। अब शिवरेड्डी और वाईएसआरसीपी के लोग बाहर आने के बाद क्या कहेंगे, ये अब देखना। फिलहाल पूरा फोकस आंध्र प्रदेश की जो राजनीति, जो पॉलिटिकल पार्टी है, शिविरेड्डी पर रखी है। शिविरेड्डी भास्कर रेड्डी का एक चेहरा था जो लिकर स्कैम में बार बार खुल के आ रहा था, मगर अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये किस हद तक सपोर्ट करेंगे, क्या है बताएंगे, ये फिलहाल देखना है। मगर आखिरकार जिस सिट ने जिस शिविरेड्डी भास्कर रेड्डी के लिए इतने दिनों से जो जाल बिछाए रखी थी, आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में है।